Welcome everyone to CMS Digital Classrooms. Today we are going to learn about the next chapter which we have in term 1 syllabus. You might have think that what about chapter number next after 8, 9. So 9 chapter we have in chapter term 2, second term. So we will learn now chapter number 10 which is ratio, proportion and unitary method. Very interesting chapter, very easy chapter as like the previous all ones. Okay, so just you have to understand the basic concept, you can do by yourself rest of all things. So just first is try to understand what is the ratio, what is the proportions and what is the unitary method, the basic things. Okay, so the ratio means, suppose we are saying a fraction, ratio means a fraction. If I am talking about the ratio of A and B, that means the fraction A divided by B, that's all. This is the ratio of A and B and it is written as A ratio B like this, and we read this as A is to B. इसको A is to B हम लोग पढ़ते हैं, A is to B we used to write like this, इस तरह से भी लिखते हैं, और in fraction we used to write like A divided by B. Okay, so this is the basic concept of ratio. इसको ये ratio का basic concept है. Now there are two terms in a ratio. This is the first term which is called antecedent, and this is the second term which is called consequent. So this is called consequent. Okay, so these are the two terms of a fractional number. One is the first term which is antecedent, another is the second term which is consequent. Okay, so if we are talking about the fractions or the ratio of a number, suppose the ratio of a number is given 3:5, so we can write this as like 3 divided by 5. हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं. So here the first term is 3, so antecedent is 3 and consequent is 5, second term is 5. So this is the basic concept of ratio. Okay, ये ratio का जो है basic concept है. Now let's learn some laws, some rules of ratio. So there are two basic things which you have to keep in mind in case of ratio. The thing is, first thing is, when you are multiplying with the same non-zero number to a ratio, their value will be remain same, their proportions will be remain same. For example, I am taking that one ratio is there which is 2:3. So if you are multiplying 4 in both the sides, so 2 multiply 4, ratio 3 multiply 4. So this will become equivalent. So this you can do. अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो. Why? Because 4 2 are, it will be 8 and 3 4 are 12. So here also we have multiplied 4. Here also we have multiplied 4. So in this way, in a particular ratio or in a particular fraction, suppose it is in fraction also 2 divided by 3. So you can do this. You can multiply this also with suppose 5 and this also with 5. So same value, with the same value you can multiply both the ratio, both the numbers. Okay, so either 5, either 6, either 7, whatever. So this is the first rules or first laws of ratio, you can say. So here the ratio will be 8:12. So 8:12 is the equivalent to 2:3, 2 ratio 3. So here if you check, so 5 2 are 10, 10 divided by 5 3 are 15. So ratio of 10 by 15 or 2 by 3 or 8 by 5, 8 by 12. So these three all are equivalent. These all three are same. Okay. So the first rule is saying you can multiply with the same value to a ratio. Okay. So same way in case of multiplication this is, and second case is you can divide also. So if you are dividing, for example, I am taking an example. Suppose two numbers are here or one ratio is here which is 60:45. So if you want, you can divide with the same number to both the value.
So suppose I am dividing 60 divided by 5 into 45 divided by 5. हम 5 से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं. So how much will be the answer? 60. 12 5 are 60, right? And 9 5 are 45. So here the answer will be 12 is to 9. So this ratio and this ratio is the equivalent ratio. Okay. So this you can do. So that means you can multiply also, you can divide also to the both the numbers. Okay, in a ratio. तो दिस इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशियो. ये हम लोग का बहुत यूज आएगा हम लोग जब आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का. So equivalent ratio, I hope you understood that whenever that is only the equivalent ratio, whenever you are multiplying with the same value or whatever you are getting, or whenever you are dividing with the same value whatever the result you are getting, those are called equivalent ratio. So equivalent ratio term is the same. Suppose two ratio are there is 2 is to 3. So t is 2 is to 3 mein what we have done is we just multiplied by 4. So 2 4 are 8, 3 4 are 12. So this is the new ratio we got by multiplying with 4 to the both ratio. So this is the equivalent ratio of this one. Same we have taken examples of 60 and 45. So we have divided this number by 5 both the number and we got the ratio 12 is to 9. So this 12 is to 9 is the equivalent ratio of 16 is to 45. Okay. So this is the basic concept of this is called the equivalent ratios. Okay. Next topic which we have is ratio in simplest form. Ratio in simplest form. Where we call a ratio in simplest form. Okay. So whenever the HCF of the two given ratio is 1, जब भी दो रेशियो जो दिया हुआ रहेगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, then only you can say that those two numbers or those two fractions or those two ratio are in simplest form. For example, if we take 11 and 15, so this is in ratio, suppose 11 is ratio 15. So here the HCF of 11 and 15 is the HCF of 11 and 15 is 1. Okay. So here we can say this ratio is in simplest form. Okay. So if the ratio is given and it is asking is this ratio is in simplest form or not, you have to find the HCF and check is the HCF is 1 or something else. So suppose we are taking another example which is 15 and 20. So 15 and 20, these are the two numbers. So HCF of 15 and 20 is not 1. HCF of 15 and 20 is 5. So here these two ratio are not in simplest form. So what we can do is to make these two ratio in simplest form, we have to divide by the HCF to the both number. दोनों नंबर को जो HCF है उससे डिवाइड करना है. तो 15 को अगर आप डिवाइड करते हो 5 से और 20 को भी डिवाइड करते हो 5 से, जो भी रेशियो आएगा वो हम लोग का बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में. सो हाउ मेनी टाइम 3 5 and 15, राइट? रेशियो हियर 5 4 and 20. So 3 is to 4. So this will be the simplest form of this, simplest form of 15 ratio 20. Okay. तो इस तरह का this is the how you can write its ratio in simplest form. Now ratio of two quantities in same units. So this is very important when the two quantities, when it is asking about the ratio of two quantities and the quantities are in different units. For example, we can take an examples to understand this. So suppose I am asking the ratio of 40 meter to 1.5. Suppose ratio of 40 centimeter to 1.5 meter. So here you can see this is in centimeter and this is in meter. So in this case you have to
convert any one number into the same unit. So here suppose we are converting this 1.5 meter into centimeter. Okay, so we know 1 meter is equal to 100 centimeter, so 1.5 meter will be 1.5 into 100 centimeter, right? So that means 150 centimeter. Okay, so 1.5 meter is equal to 150 centimeter. So now you can find the ratio of 40 centimeter and 150 centimeter. So this is the ratio, and now you have to find the LCM of these two numbers, and you have to divide by the same LCM, and whatever the number you will find, that will be the required simplest ratio in simplest form. Because you have to write the ratio in simplest form only. This is not the final answer. You have to find the LCM of these two numbers and divide by the LCM and write the number in write the ratio in simplest form. That will be the answer. So this is how you can solve the questions related to this exercise. Okay. So let's see now some questions related to the ratio and proportion. So we have learned about that what the ratio is. Ratio means the comparison between two values. So if we are talking about some examples here, suppose we have taken an example that ratio of 12 girls and 18 boys. So if I am talking about in a class there are 12 girls and 18 boys, and then what will be the ratio of the boys and girls or girls and boys? So girls to boys, the ratio will be 12 by 18 because girls is 12 and boys is 18. Okay, so this is how if we are talking about the ratio, if you reduce this ratio into the lowest fractions, then it will come 2 divided by 3. Okay, now proportions. What is the proportions? What the proportion is called? The proportion is the equation stating that the two equations are same. If you write 12 by 18 or 12 by 18 is equivalent to 2 by 3. So this is called the proportion. This is, we call that 12 by 18 is proportion to the 2 by 3. Okay, now here in the ratio there are some terms which we have already learned in the video also, that the ratio of two quantities A and B in the same unit is the fraction of A by B. तो ratio का मतलब क्या होता है? A divided by B. तो A by B का fractions में होता है और उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. अब जो है हम लोग का आ जाता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 5:9 का. ओके, रेशियो 5:9 का हमने एक एग्जांपल लेकर लिया है, और एग्जांपल क्या लिया है? दो नंबर है 5 और 9. तो 5 जो है उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है और 9 जो है इसको कंसिक्वेंट बोला जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग का ध्यान देने वाला बात है कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस किसको बोला जाता है. सेम चीज़ यहाँ पे और भी एग्जांपल्स लिया गया है, जैसे 4:5. उसी तरह से यहाँ पे लिया गया 8:10. इसी तरह से लिया गया है 12:5 और 4:6 एंड 2:3, 2:3. तो ये सारे रेशियो में हैं, और इसका जो रूल्स है, ठीक है, रूल्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग कोई भी फ्रैक्शन में आइदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं विद द सेम वैल्यू. कोई सेम वैल्यू जिसका जो कि नॉन जीरो नंबर होगा, मतलब जीरो नहीं, सो यू कैन आइदर मल्टीप्लाई विद द सेम वैल्यू और यू कैन जस्ट डिवाइड बाय द सेम वैल्यू टू ए फ्रैक्शनल नंबर. तो एक फ्रैक्शनल नंबर में हम लोग सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोपोर्शंस. सो प्रोपोर्शंस में हम लोग ने यहाँ पे बात किया कि A इंस्टू बी इज इक्वल टू C इंस्टू डी. ए और बी और C और D को हम लोग प्रोपोर्शंस में तभी बोलेंगे जब जो है ABCD ये चारों जो है जब प्रोपोर्शंस में रहेगा. अब इसमें प्रोपोर्शंस में अगर ABCD चारों है तो इसमें एक्सट्रीम्स और मीन्स होता है. ठीक है, तो एक्सट्रीम बोला जाता है यहाँ पे हम लोग का B और यहाँ पे A और D जो है इसको एक्सट्रीम बोला जाता है, और B और C को मीन्स बोला जाता है. जो बीच में रहता है उसको मीन बोला जाता है, और जो बाहर वाला A और D होता है इसको एक्सट्रीम बोला जाता है. तो हम लोग का एक प्रॉपर्टी है, एक रूल्स है, वो ये है कि प्रोपोर्शन में द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ये इक्वल होता है, दैट इसका मतलब होता है A इंस टू D विल बी इक्वल टू B इंस टू C. ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इम्पॉर्टेंट रूल्स है प्रोपोर्शंस का, जो हमारे आगे का क्लासेस में भी काम आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो एक्सट्रीम ऑफ मीन्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बट इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोपोर्शन, सो लेट्स फोकस ऑन द थिंग विच वी हैव इन दिस चैप्टर। ओके, स्पेशली रेशियो वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। ओके, उसके बाद प्रोपोर्शंस जो होता है उसमें फोर्थ प्रोपोर्शंस वगैरह है, देन कंपैरिजन रूल्स है, दीज ऑल थिंग्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ स्पेशली वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 10A। 10A से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो है काफ़ी चीज़ हम लोग ने इसमें डिस्कस किया है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सरसाइज। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रेशियो को, कोई भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहला चीज़ हम लोग का जो होता है वो होता है HCF लेना। तो जो भी दो नंबर दिया हुआ रहता है उसका हम लोग HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं और उससे डिवाइड करते हैं दोनों नंबर को। तो आप अगर 24 और 56 का HCF निकालोगे तो उसका HCF आएगा आपका उसका HCF आएगा आपका द HCF ऑफ 24 एंड 56 विल कम एज 8 आएगा। ठीक है, तो 8 आने के बाद जो भी HCF 8 है तो हम लोग 8 से 24 को भी डिवाइड करेंगे और 56 को भी डिवाइड करेंगे। तो 24 और 56 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो हम लोग का आंसर जो आएगा ये 3/7 आएगा। और हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी हम लोग बोलेंगे कोई भी फ्रैक्शंस को, कोई भी रेशियो को, जब वो दोनों का HCF 1 होता है। तो यहाँ पे आप 3 और 7 का अगर HCF देखोगे तो 1 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25 एंड 56 विल बी 3:7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी जो फ्रैक्शनल और कोई भी रेशियो दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, यहाँ पे 84 पैसे 2 रुपीज़ 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है कि एक जो है पैसे में है और एक जो है रुपीज़ में है, तो दो अलग अलग यूनिट में है। तो इस तरह का दो अलग अलग यूनिट में अगर रहता है तो आपको जो रुपीज़ में है, जो पैसे में है उसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, या तो रुपीज़ में जो है उसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने देखिए जो पैसे में था उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो पैसे में जो है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, 100 से इसको डिवाइड किया है। तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो नंबर आया है वो आया है 0.84 और एक जो है 3 रुपीज़ ऑलरेडी है। तो इसका ये दोनों का अगर आप चेक करोगे तो HCF आएगा हमारा 3। तो इसके बाद आप 3 को जो है 3 से इसको भी डिवाइड करो, 3 को न्यूमरेटर से भी करो, डिनोमिनेटर से भी करो। तो उस तरह से डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करने के बाद हम लोग का जो रेशियो आएगा डेसिमल 28 डिवाइडेड बाई 1 आएगा। सो डेसिमल 28 डिवाइडेड बाई 1 को हम लोग 28 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, बिकॉज डेसिमल अगर हटाओगे तो यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 2 जीरो इसमें आ जाएगा, तो इस तरह से ये 100 बन जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं 28/100। तो 28/100 को भी ये भी हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसका भी हम लोग HCF निकालेंगे तो हम लोग का HCF मिलेगा 4। तो 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 4 से दोनों को डिवाइड करने के बाद हम लोग का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा ये 7/25 आएगा। अब इसको आप और एक तरीके से भी कर सकते हो। वो तरीका ये है कि आप मान लीजिए 84 पैसे को ना कन्वर्ट करके आप 3 रुपीज़ को 300 पैसे कर सकते हो, बिकॉज 1 रुपीज़ 100 पैसे, सो 3 रुपीज़ विल बी 300 पैसे। तो 84 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नंबर जो है पैसे में आएगा और रेशियो जो है इस तरह से इसका भी सेम आएगा 7/25 भी। ठीक है, तो ये चीज़ है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी तरह से उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें, ये भी अलग अलग यूनिट में है। एक है किलोग्राम में और अनदर है ग्राम में। तो यहाँ पे भी हम लोग
जो है सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट किया है। देखिए 4 किलोग्राम को 4000 ग्राम किया है, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और उसके बाद ये दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे तो 250 आएगा। तो 250 से हम लोग ने दोनों को डिवाइड किया है। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद हम लोग का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 16 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका एचसीएफ हम लोग का 1 ही होता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 4 किलोग्राम और 750 ग्राम का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो हम लोग का हो जाएगा 16:3। ओके, तो इसी तरह से हम लोग ये भी जो है 1 किलोग्राम, दोनों किलोग्राम में है, एक डेसिमल में है और एक सिंपल में है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डेसिमल से कन्वर्ट कर लिया गया है और कन्वर्ट करने के बाद हम लोग का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना से इसको डिवाइड करना है, 6 से करना है, 5 से करना है। तो हम लोग का ये बहुत ही ईजी है, हम लोग को ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। जो भी एचसीएफ होगा उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, और वो उससे डिवाइड करने के बाद हम लोग जितने में से भी डिवाइड करेंगे वो हम लोग का लोएस्ट फ्रैक्शंस में आ जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आप बाकी सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 हो गया। चलिए 4 का भी डिस्कस करते हैं। 4 में एक मिनट में है, एक आवर्स में है। तो मिनट में है जो उसको मिनट में रहने देते हैं, आवर्स जो है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिए हैं। और उसके बाद ये दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे 48 और 60 का 12 निकलेगा। तो 12 निकलने के बाद 12 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4/5 आंसर आएगा। ठीक है, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारा चीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए, आप जो है इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है आप एक बार बनाने का कोशिश करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम चीज़ है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही निकालना है। तो सेम चीज़ हम लोग दोनों का पहले एचसीएफ निकालेंगे, जो भी एचसीएफ निकलेगा उससे दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 36 निकलेगा तो दोनों को 36 से डिवाइड करना है। सेम चीज़ हम लोग क्वेश्चन 3, 4, 5 तक कर सकते हैं। ओके, 6 का भी सेम है, दोनों का एचसीएफ निकाल के एचसीएफ से डिवाइड करना है। तो अभी मैं ज़्यादा होमवर्क आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आपका जो है होमवर्क मैं जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक मैं दे रहा हूँ। 4 तक 5 तक आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो इस बार का आपका होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक है। 5 तक आप खुद से बनाने का कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है वी विल डिस्कस इन ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस ऑल्सो, and the rest of all we will discuss in the next video. Thank you, have a good time, take care of yourself, and bye bye.